Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. Everybody was very sad, and Mr. Hauser had brought his book of primary class. Edges of the book were worn out. He had opened this book on his knees. His spectacles were on the pages of the book. यू नो सब कोई बहुत ज़्यादा सैड था। जो हॉसेड था वो अपना प्राइमरी स्कूल का जो बुक था वो लेके आया था, जिसके किनारे फटे हुए थे। एंड उस बुक को उसने अपने जो नीज होता है, घुटना होता है, उस पर रख के ओपन किया हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Franz was trying to guess what had happened. Meanwhile, M. Hamel, who was his teacher, sat on his chair, and he said in a sad and gentle voice that this is the last lesson he would teach them. फ्रांस ट्राई कर रहा था गेस करने का कि क्या हुआ है। तब तक जो उसके टीचर होते हैं एम हैमल, वो चेयर पे बैठते हैं और बहुत ही सैड और जेंटल वॉइस में कहते हैं कि ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ। ये हम लोग का लास्ट चैप्टर होने वाला है, लास्ट लेसन होने वाला है। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. M. Hamel informed that an order had come from Berlin in all schools of Alsace and Lorraine towns. The teaching had to be in German medium. The new teacher would be coming tomorrow. He further informed that this would be our last class in French. He requested them to pay attention. जो एम हैमल हैं तो वो कहते हैं कि ये हम लोग का लास्ट लेसन है, और वो इन्फॉर्म करते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि जो अल्सेस है, लॉरेंस है, ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसमें जितने स्कूल हैं सब में जो भी टीचिंग का मेथड होगा वो जर्मन मीडियम होगा, ना कि फ्रेंच में पढ़ाया जाएगा। एंड जो न्यू टीचर हैं जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो कल आ रहा है। और वो आगे ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि ये आप लोगों का जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका ये लास्ट लेसन है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग ध्यान दीजिए। ये सारी बातें जो फ्रांस है उसके टीचर कहते हैं मिस्टर एम हैमल। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. These words were a shock to Franz. He calls Germans scoundrels. Now he is able to understand about the notice at the bulletin board. जब फ्रांस अपने टीचर की बात को सुनता है तो उसके लिए ये शॉकिंग रहता है, और जर्मन्स को वो स्काउंड्रल बोलता है और कहता है कि अब उसको नोटिस पे, जो बुलेटिन बोर्ड पे जो भीड़ लगी हुई थी, जो लोग खड़े थे, तो अब उसको समझ में आता है कि ये नोटिस बोर्ड पे यही इंफॉर्मेशन लगी हुई थी। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the shore. Franz is talking to himself. My last lesson in French. I do not know how to write French. He thinks that he should have learnt more. He wants to learn more. He regrets going in the jungle for picking eggs. He regrets going for ride boating on Sar River.
जब फ्रांस को पता चलता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो अपने आप से, अपने मन में अपने आप से बात कर रहा होता है कि मेरा जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन है और मुझे फ्रेंच लिखने तक नहीं आता है। कहता है कि मुझे और ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहिए था, अब मैं सीखना चाहता हूँ। वो रिग्रेट करता है कि वो जब क्लास बंक करके वो जाता था, एग स्पीकिंग करता था और ये बोटिंग करता था सार रिवर में। तो ये सारी चीज़ें, वो अपने सब्जेक्ट पर, फ्रेंच लैंग्वेज पर उतना फोकस नहीं करता था, लेकिन अभी उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैं तो फ्रेंच लिखना भी नहीं जानता, मुझे और ज़्यादा सीखना चाहिए था, जब मेरे पास टाइम था तो मैंने किया नहीं और आज मेरा लास्ट लेसन है। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands, were old friends now that I couldn't give up, and M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. You know, now Franz thinks that his books were his friends. Earlier, he used to think that these were a problem for him. He did not want to give up books. He also understood that M. Hamel would be going away from school. Franz will never see him again, so he forgot everything about his ruler and his strange behavior. फ्रांस सोचने लगता है कि उसके बुक ही उसके सबसे अच्छे फ्रेंड्स थे और जिन्हें पहले उसको प्रॉब्लम लगता था कि ये किताबें उसके लिए प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन लग रहा है कि अभी सोचता है कि वही मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड थे और वो अब किताबों को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि अब से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएंगी और उसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और ये बात भी उसको समझ में आती है कि जो एम हैमल उनके फ्रेंच टीचर हैं, तो अब वो नहीं पढ़ाएंगे, उस स्कूल में वो नहीं रहेंगे और फ्रांस जो है अब अपने टीचर को दोबारा नहीं दिखेगा। तो वो जो टीचर का रूड बिहेवियर या फिर गुस्सा या उनका रूलर होता है मारना, तो वो सब कुछ उस मोमेंट पे भूल जाता है। उसको बस पछतावा हो रहा होता है कि उसको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए थी, उसको पढ़ना चाहिए था, तो वो बहुत अफसोस कर रहा होता है। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. Franz now understood many things. M. Hamel was wearing those clothes because it was his last lesson. Villagers were sitting in the class because they had a regret of not going to school for more time. They had come to the class to thank M. Hamel for the service he had given to the school. They had come to show respect to their country, since their country was occupied by Germans. The author says that now it was not their country. फ्रांस को अब सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि जो एम हैमल थे, तो उन्होंने ये जो न्यू क्लोथ से मतलब ये सारे कपड़े क्यों पहने थे, क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन है। और जो विलेजर्स हैं वो पीछे बेंच पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनको भी रिग्रेट था कि वो स्कूल नहीं जा पाए। और जो क्लास है ना, मतलब इसीलिए वो सारे लोग आए हैं एम हैमल को थैंक यू करने के लिए। उनका जो सर्विस, जो स्कूल को वो 40 ईयर्स से जो पढ़ा रहे थे, उनका जो सर्विस है उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए वो सारे लोग आए हैं। और वो अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपने कंट्री को, जो कंट्री जो जर्मन्स थे अब ऑक्यूपाई कर ली गई है, तो वो अब उनकी कंट्री भी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें अब फ्रांस को समझ में आ जाती हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule?
for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and I stood there, holding on Tommy desk, my heart beating and not daring to look up. While Franz was thinking, his name was called. He wanted to recite his lesson correctly. He was ready to give everything he had to correctly recite rules of participle, but he got confused. He stood silently at his desk. He did not have the courage to look up and see his teacher. फ्रांस ये सारी बातें सोच रहा था, हर बात उसको समझ में आ रही थी कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया नहीं जाएगा, टीचर चले जाएंगे और ये जो जर्मन है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है सारी चीज़ें, सब कुछ सोच रहा है। तब तक उसका नाम बोला जाता है और वो चाहता है कि जो उसका लेसन है ना उसको अच्छे से वो रिसाइट करे, करेक्टली रिसाइट करे, और वो रेडी होता है सब कुछ मतलब करेक्टली रिसाइट करने के लिए, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। अब जब कंफ्यूज हो जाता है तो वो साइलेंटली अपने डेस्क पर खड़ा हो जाता है एंड मतलब उसकी हिम्मत नहीं रहती है कि वो अपने टीचर को फेस कर सके, क्योंकि वो टीचर जिसने बहुत मेहनत से सारा कुछ पढ़ाया था, लेकिन बच्चों ने उन चीज़ों को मतलब सीरियस नहीं लिया, फ्रांस ने मेहनत नहीं की, तो इसलिए उसको शर्मिंदगी फील होती है और उसमें हिम्मत नहीं रहती है कि वो अपने टीचर को देखे। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Wah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. M. Hamel scolded Franz. M. Hamel told Franz that he will not scold Franz. You must be feeling bad. Every day we tell ourselves that we have lot of time to study. I will study tomorrow, and now you have understood that there will be no tomorrow. जब फ्रांस कंफ्यूज हो आता है, अपने टीचर को फेस नहीं कर पाता, तो एम हैमल उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बुरा फील करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हर दिन अपने आप से कहते हैं कि कल पढ़ लेंगे, कल कर लेंगे कोई भी चीज़, और आप लोगों को खुद ही पता होगा कल करते करते हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं। तो वही उसके टीचर कह रहे होते हैं कि हम लोग को तुम्हें बुरा फील करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी पढ़ाई करनी होती है तो कल पढ़ लेंगे, और देखो कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि कोई आने वाला कल नहीं होता है, जो है आज ही आपका है। अगर आप कोई काम कल पर टाल रहे हैं तो आप वो चीज़ ठीक नहीं कर रहे हैं। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretended to be Frenchmen, and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little Franz. We have all a great deal to reapproach ourselves with. M. Hamel continues that it is the big trouble with people of village Alsace. People postpone learning to next day, and now Germans will tell you that you do not know how to read or write French. So why should you call yourself Frenchman? But France, you are not worst. We all need to repent ourselves. एम हैमल और भी चीज़ें उसको समझाते हैं, कहते हैं कि ये जो विलेजर्स हैं अल्सेस के, उन सब की प्रॉब्लम है। लोग बाद में सीख लेंगे के चक्कर में ये जो लैंग्वेज है उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, और जर्मन्स आएंगे तो क्या कहेंगे, तुम लोग कहते हो अपने आप को कि फ्रेंच मैन हो और तुम लोग को फ्रेंच लिखने और पढ़ने भी नहीं आता है। कहते हैं कि फ्रांस, बस तुम्हारी ये गलती नहीं है, हम सारे लोगों को जो हमने किया है ना उसके लिए हम सारे लोगों को पछताने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को फ्रेंच मैन बोलते हैं और हम लोगों को फ्रेंच ना लिखने आता है ना पढ़ने आता है।